So, Jai Hind everyone. Today we are here to discuss the topic disaster algorithm in the data structure in the graph. That is a topic of the unit 5th. So, in this topic we have to be discussed what is this algorithm. Just a minute. What is disaster algorithm? Why we need the disaster algorithm? Can this algorithm be work on the directed graph or on the undirected graph? Because this is a topic in the graph, that is unit 4, and the graph is maybe directed graph or the undirected graph. So this algorithm can be work on directed or undirected or both. And next we have to be discuss the algorithm of the disaster algorithm. Then next last we have to be discuss some numerical problem based on this algorithm. So how this algorithm works, or what is the meaning of the disaster algorithm? So in a graph, if we have to be considered, we have the multiple number of vertices and that are connected with the edges. And in this graph, we have the 5 number of vertices A, B, C, D and E, and we have to be find out the distance from one vertex to the another vertex. Means we have to be find out the distance from A vertex to A to B, A to C, A to D and A to E, and we have to be apply this algorithm to find out the path between the from one vertex to the all the remaining vertex. So for this find out the path, we are using the disaster algorithm, and it is also known as a single source vertex algorithm. इसको हम क्या बोलते हैं? That is a single source vertex algorithm, because in this graph हमें क्या करना है? एक ही vertex से, and that is vertex is A. A से मुझे B का distance find out करना है, A से ही C का करना है, A से ही D का करना है, A से ही E का find out करना है, and when we have to be find out the distance, that distance is minimum. So to find out this, we are using this algorithm. So it is the popular algorithm for solving many single source shortest path problem. अभी यह डिस्कस किया कि हमको क्या चाहिए? एक ही पाथ से, एक ही वर्टेक्स से हमें क्या चाहिए? सभी का पाथ को फाइंड आउट करना है, मीन्स सभी के सारे वर्टेक्स को ट्रेवर्स करना है, और उसी के लिए हमको क्या निकालना है? उसकी एक पाथ निकालना है, और पाथ क्या होना चाहिए? दैट इज द शॉर्टेस्ट. दिसास्टर एल्गोरिथम कैन बी अप्लाई इट बी वर्क इजिली if we have the positive weights, means non-negative weights. Sometimes if we have the negative weights, so it will be fail. We have to be discussed later ki how it will be fail. So disaster algorithm may be used when it has the positive weights, or we can say that the negative is weights in the given graph. And we have to be find out the shortest distance from the two vertices, or from one vertices to the another vertices. So it is also known as the single source vertex algorithm. This algorithm maintains, as we have to be discussed, we have a set of the vertices. So here we have to be declare we have a set of vertices and a set of the unvisited vertices. In the firstly we have a set of the vertex. Vertex कौन सा हमारा? A, B, C, D, E. क्लियर? तो अभी तक हमने किसी भी वर्टेक्स को ट्रेवर्स नहीं किया है, तो हम इसको दो पार्ट्स में लेके चलते हैं. एक साइड मेरा क्या आएंगे? विजिटेड वर्टेक्स, दूसरी तरफ क्या आएंगे? हमारे अनविजिटेड वर्टेक्स. तो यहीं पे वो डेफिनेशन में कह रहा है कि हमारे पास जिस एल्गोरिथम को हम यूज करते हैं, इट हैज ए सेट ऑफ द वर्टिसेस एंड ए सेट ऑफ द अनविजिटेड वर्टिसेस. We have to be start from the one vertex. We have to be start from the one vertex. और जिस vertex से हम start करते हैं उसको क्या बोलते हैं? That is the source vertex. And remaining all vertex are the unvisited vertex. Then we have to be find out the smallest tentative distance from the source vertex. Means कि अगर मैं यहाँ पे बात करें, A is connected to B, that is value suppose plus 2, A is connected to D, value is plus 4, A is connected to C, value is the plus 3. So in these three edges we have to be find out which is the smallest distance. So okay, so there it is find out the smallest tentative distance from the source. Then it will be visit to the neighbors. Means यहाँ पे जैसे ही मैंने A को सबसे पहले ट्रेवर्स किया, अब ये फाइंड आउट किसको करेगा? A को ट्रेवर्स करने के बाद इसके नाइबर्स. सपोज नाइबर्स कौन कौन सा है? दैट इज B, दैट इज C एंड दैट इज D. एंड वी हैव टू बी फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस. Okay, we have to be find out the minimum distance. Means after
traverse the A, we can be moved to B, we can be moved to D, and we can be moved to the C, any one. Then again, it is this path we have to be traversed. Again, we have to be find out the adjacent of this node, and again we have to be find out the minimum. Until we have to be find out all the vertices covers, means कि जब तक हमारा जो set of अनविजिटेड वर्टेक्स है ये एम्प्टी नहीं हो जाता है, जब तक हमको क्या करना है, इस चीज को ट्रेवर्स करते जाना है. यही एल्गोरिथम्स हमें यहाँ पे सॉर्ट करती है. और इसी में हम क्या करते हैं, वी हैव टू बी फाइंड आउट ए शॉर्टेस्ट पाथ. व्हाई वी नीड दिस एल्गोरिथम? If suppose we have to be move from one point to the another point, and we have to be find out the minimum distance. So to find out this minimum distance, we are using this algorithm. A simple example is how Google Map is work. From the starting point, we have to be a starting point, and we have to be the ending point, and it will be find out the firstly path between these point, and then we have to be find out the डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय द मिनिमम. कि अगर मुझे एक वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स पे जाना है, मैं यहाँ पे बोल दूं कि दैट इज द सोर्स वर्टेक्स, और ये मेरा क्या है, दैट इज द एंडिंग वर्टेक्स. तो इस वर्टेक्स में यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए गूगल मैप हमें क्या करता है, एक वे दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है, एंड दैट इज अ पाथ विच हैज द मिनिमम डिस्टेंस. तो इसीलिए हमारा गूगल मैप पे किसके ऊपर वर्क करता है, वी हैव टू बी अप्लाई द दिस एल्गोरिथम. एंड दिस इज अगेन, इट इज आल्सो नोन एज ए, दैट इज नोन एज सिंगल सोर्स वर्टेक्स या सिंगल सोर्स पाथ एल्गोरिथम. फ्रॉम हम कहां से स्टार्ट करते हैं, वी हैव टू बी स्टार्ट द सिंगल सोर्स. एंड सेकेंड वन, वी हैव टू बी यूज द राउटिंग प्रोटोकॉल्स इन द कंप्यूटर लैब्स, और इन द वी कैन से द इन द नेटवर्किंग वी आल्सो कैन बी यूज्ड this type of. We have to be connected from the one node, then we have to be connected to the another node, then we have to be connected to the another node. So in the routing protocol for the computer networks, we can be use this algorithm. Next one is we have to be discuss the graph. So graph may be directed graph, and the graph is the undirected graph. So can this algorithm is used for the directed graph or undirected graph or both? Yes, disaster algorithm can be work on the both directed graph as well as the undirected graph. But it will be graph is directed graph or undirected graph, but it will be work better when it has no negative edge width that are connected from one vertex to the another vertex. If we are talking about the directed graph, in the directed graph, each edge has a direction that indicate the direction of the travels between the vertices that are connected by the edge. In this case, algorithm follow the directions of the edge when searching the shortest path. And in the undirected graph, there is no direction given in the graph, and this algorithm can be traversed both forward and backward along the edges. Means अगर मेरे पास यहाँ पे दो वर्टेक्स है, that is A to B, अगर मुझे A to B की फाइंड आउट करनी है तो मैं यहाँ पे A to B भी मूव कर सकता हूँ. When we have traversing to B, अगर मैं B पे खड़ा हूँ तो मैं बात किसकी भी कर सकता हूँ, B to A. But अगर if I am talking about this, तो it is the directed graph. Means there is a direction from A to B, but there is no direction from B to A. Okay. How this algorithm work? Before as we have to be start the example, so firstly we say that how this algorithm can be work. As we have to be discussed here, we have a number of the vertices. Suppose we have a graph. How it algorithm work? Firstly, we have to be considered all the vertex, and these vertex are the unvisited vertex. Means we have to be create a table and divided into two parts. In one part we have unvisited vertex, and this side we have the visited vertex. So when we have to be start, we have to be consider all the vertex are in the unvisited vertex.
एंड वी हैव टू बी स्टार्ट फ्रॉम द वन वर्टेक्स, और जिस वर्टेक्स से मुझे यहाँ पे स्टार्ट करना है वी हैव टू बी कंसिडर्ड two, that is u and v. V is the vertex from where we have to be start and v is the unvisited vertex. So firstly, number one, make all the source vertex. From this we have to be find out the source vertex. Suppose a is the source vertex, then we have to be put the value of source vertex is 0, means we have to be give u equal to 0, and all b, c, d all are vertex and we have to be assign the value is infinity. In the starting we have to be declare the source vertex. So in the first point it will be says ki mark the source vertex with the current distance 0, because we have to start from this vertex and the distance of this vertex from this vertex is that is a 0, and rest we have to be put the infinity. Now we have to be discuss ki we have to be find out the source vertex, and source vertex may be a, may be c, may be d, e, f and b. We have to be decide any one of the source vertex. If we have to be decide the source vertex is a, then we have to be put its value is 0 and remaining all are the infinity. Second one, now we have to be find and a set of non-visited nodes from the smallest current distance as the current node. अब यहाँ पे क्या करना है कि जो भी values है from this node say we have to be find out the neighbors of this, that is b, it is connected, that is d, it is connected, and that is c, and we have to be also find out the distance. And for each neighbors, if total number of the n vertex that is connected, and we have to be find out the current distance of the adjacent node which weight has the minimum distance. Means अगर यहाँ पे कोई जो भी मेरी minimum distance है, suppose minimum distance कितना है b, if I am covered from a to b, तो value is infinity. Now 0 plus 1 its value is 1, so that is the minimum distance, so we can be moved from a to the b. And if it is the smallest distance, then the current distance of the node to set as it is the current distance of the n. And next step we have to be mark the current node as 1 is the visited. कि हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे इसको visited किया था, अभी visited में हमारे पास कितना आ गया a, जैसे ही हम move किए from 1 to b, तो we have to be move to that node and that is the b. तो we have the two visited vertex of how we can be implement this कि until we all the vertex from the unvisited to the comes to the visited side, so we have to be start. So we can say that we can repeat step 3, step 4 and step 2 until go to step 3 if there is any number of nodes are in the unvisited vertex. It means if we have suppose some unvisited vertex in this queue in this table, so we can be apply until this is empty. So this is the algorithm how it will be works. Let's just take an example. So in this algorithm we have to be consider 2 points before solving this example, that is इस एग्जांपल को सोल्व करने के लिए कैसे एल्गोरिथम काम करेगी, अभी यहाँ पे डिस्कस किया था कि मेरे पास दो वर्टेक्स, एक u एक v. तो फर्स्टली व्हाट वी डू, वी हैव टू बी मेक ए टेबल एंड इन दिस टेबल वी हैव to be this side is the visited vertex and this side is the unvisited vertex. So firstly we have to be put all the vertex here 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. How it will be work? We have to be find out the distance of u plus cost, means c, cost of u and v is less than distance of v, and we have to the two vertex u and the v. If it is true, so what we do, we have to be the dv equal to du plus cost of u and v. So here firstly we have to be start, we have to be find out the source vertex कि मुझे यहाँ से find out करना है कि मेरा source vertex कौन सा है. Let us consider the source vertex is 0. तो we have to be put its value is 0 और बाकी सभी की values हमें यहाँ पे क्या put कर देना है, that is infinity. तो
दैट इज वैल्यू इज 0, बाकी सबकी वैल्यूज हमने यहाँ पे क्या पुट किया, दैट इज द इंफिनिटी. नाउ वी हैव टू बी फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस टेबल. और मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, 0. जिस वर्टेक्स की मिनिमम डिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मूव आउट किया इन द फर्स्ट स्टेप. तो मीन्स मैंने यहाँ पे अभी ट्रेवर्स किसको किया, दैट इज ए सिंगल सोर्स वर्टेक्स, दैट इज 0. नाउ वी हैव टू बी अप्लाई द कॉस्ट डी ऑफ यू. अब यहाँ पे बात करें डी ऑफ यू मीन्स यू की डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस कितना है 0 प्लस कॉस्ट यू एंड वी. अब सपोज वी की मैं बात कर लेता हूं, वी इज दिस, क्लियर. तो कॉस्ट ऑफ वी इज दैट इज द 6. तो 0 प्लस 6 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ वी. डिस्टेंस ऑफ वी कितना है, इंफिनिटी. तो कंडीशन इज ट्रू. तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डी वी को क्या कर दो, ये वैल्यूज असाइन कर दो. मींस मैंने यहाँ पे क्या किया, अब इसके वेट को मैंने क्या किया, अपडेट किया, दैट इज 6. सेम हियर, इट्स वेट इज इंफिनिटी. तो अगेन डिस्टेंस ऑफ यू 0 प्लस कॉस्ट ऑफ यू एंड वी. अब वी कौन सा है मेरा, दिस साइड. तो 0 प्लस 2 लेस देन इंफिनिटी, कंडीशन ट्रू. तो वी हैव टू बी अपडेट दिस वैल्यू और दैट इज 2. तो मींस जैसे हमने यहाँ पे इसको किया, अब इस टेबल के अंदर 0 से 3 का कोई लिंक नहीं है, 0 से 4 का कोई लिंक नहीं है, 0 से 5 एंड 0 से 6. तो रिमेनिंग ऑल वैल्यूज आर इंफिनिटी. तो नाउ डिस्टेंस ऑफ 1 का कितना हो गया, दैट इज 2. 2 का कितना हो गया, 6. बाकी इसमें यहाँ पे कोई भी वैल्यूज. तो अगेन वी हैव टू बी फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम डिस्टेंस इज 2 ऑन विच वर्टेक्स 1. तो वी हैव टू बी मूव one vertex from the unvisited side to the visited side. So now we are moving on this vertex 1. Now again it is u and we have to be find out the connected value. तो u means distance 0 plus distance of v कौन सा हो गया मेरा, this side 0. इस पे आया u की डिस्टेंस कितना है, सॉरी 2 plus 5. 2 plus 5 is 7 and 7 is less than infinity. तो 7 मेरा क्या है, again we have to be find out distance of u. distance of u कितना है 2. cost of u and v, अगर v है तो u and v का cost कितना हो गया 5. तो 2 plus 5 is 7 और 7 is less than distance of v. अब distance of v कितना है infinity. तो हम क्या कर रहे हैं कि distance of v को क्या कर दे, distance of u plus cost of u and v. तो इसकी वैल्यूज हमने कितना किया, 2 plus 5 that is 7. अगेन अब यहाँ पे हमारा कोई भी बाकी 1 से बाकी किसी का भी लिंक नहीं है. तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू बी अपडेट द वैल्यू ऑफ 2 इज 6 एंड वैल्यू ऑफ 3 इज 7. बाकी रिमेनिंग इज इंफिनिटी. तो अगेन वी हैव टू बी फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस. द मिनिमम डिस्टेंस इज द 6 एंड विच वर्टेक्स वी हैव टू बी मूव आउट, दैट इज द 2. तो वी हैव टू बी मूव द वर्टेक्स दैट इज 2. मीन्स अब मेरा 2 कहां पे आ गया है, विजिटेड वर्टेक्स के साइड. ओके, अब सेम दैट इज u. अब फिर ये देखेगा इसका कनेक्टेड किसके, 3 के साथ. अब अगेन वी हैव टू बी अप्लाई डिस्टेंस ऑफ u दैट इज द 6. डिस्टेंस ऑफ u इज दिस 6 प्लस 8 दैट इज 6 प्लस 8 मीन्स 14 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ v. और डिस्टेंस ऑफ v कितना है 7. तो कंडीशन क्या है, ट्रू नहीं है. तो मींस हम अब इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं करेंगे. मुझे अगर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो मुझे इसकी वैल्यू को अपडेट करना है. तो मींस जब हमने यहाँ पे ट्रेवर्स किया तो अब मेरी ये वैल्यू को चेंज यहाँ पे नहीं करेगा. ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम एज इट इज यही रहेगी. नाउ अगेन देयर इज नो लिंक 2 to 4. तो वैल्यू 4 इज इंफिनिटी. 2 to 5 no link, that is infinity, and 2 to 6 is the infinity. So again this table we have to be find out the minimum distance, or that is the 7. So which vertex is move out, 3. So now we have to be move the vertex 3 from unvisited to the visited. और कब तक करते जाना है, जब तक कि सारे के सारे वर्टेक्सेस यहाँ से हम क्या ना कर दे, मूव आउट ना कर दे. मीन्स अब मेरा हमने यहाँ पे किसको कवर किया, that is 3. Done. Now 3 that is u and this is v. Now cost of distance of u. Distance of u is 7. So here now value is 7 plus
distance या cost of u and v that is 10, तो 10 plus 7 equal to 17, that is less than infinity, condition is true। तो हम यहाँ पे क्या करें, इसकी वैल्यूज को चेंज कर दिए और ये वैल्यूज कितना आ गया 17। सेकेंड वन 3 to 5 कनेक्टेड है, तो अगेन डिस्टेंस ऑफ u दैट इज 7, डिस्टेंस ऑफ कितना आ गया 7 प्लस कॉस्ट ऑफ u एंड v दैट इज 15, वैल्यू इज 22 और इसकी वैल्यू कितना है इंफिनिटी, दैट इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ v, तो वी हैव टू बी अपडेट इट्स वैल्यू इज 22। देयर इज नो लिंक बिटवीन द 3 to 6, तो अगेन वी हैव टू बी अपडेटेड वैल्यूज। तो व्हेन वी हैव टू बी मूव 4 वैल्यूज फ्रॉम इंफिनिटी टू चेंज 17, second one fifth is 22 and last one is the infinity। So again we have to be find out the minimum distance and minimum distance is 17, so we have to be move the vertex 4, we have to be move the vertex 4, so we have to be find out the minimum distance, or minimum distance is that is the 17, so means we have to be pop out the element is the that is 4, we have to be the pop out the element 4। again we have to be in this table 22 and we have to be move 4 distance of u। अब ये क्या हो गया u, ये क्या है v, तो distance of u कितना हो गया मेरा 17 प्लस cost of u and v that is the cost is the 2, so that is 2 means 19। अब values कितना है उसका infinity, तो we have to be update, I am putting here in the last, अभी तक हमने कितना मूव किया था 3 and 4 और यहाँ पे हमारी वैल्यूज कितना था 1 2 3 4 7 22 एंड infinity। जैसे ही हमने वर्टेक्स 4 पे मूव किया 4 से अब गए तो 4 वैल्यू से 6 वैल्यू इज 19, तो मीन्स यहाँ पे जब ये पुट किया फर्स्ट वैल्यू इज 22, क्योंकि 4 to 5 का कोई भी यहाँ पे 4 to 5 का लिंक नहीं है और ये वैल्यूज हमारा कितना आ गया दैट इज द 19। तो अगेन वी हैव टू बी फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस इज द 19 और ये कौन से का है मेरा 6, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड सॉरी 0 1 2 5, तो कौन सा मूव किया 6, तो मीन 0 1 2 4 एंड 6, तो 19 को मूव किया। नाउ वी हैव टू बी मूव फ्रॉम 6, तो 6 वैल्यू इज द डिस्टेंस ऑफ u दैट इज द 19 प्लस कॉस्ट ऑफ u एंड v दैट इज द 6, तो दैट इज द 25। नाउ इट विल बी चेक द डिस्टेंस ऑफ v इज 22, तो this condition is not be true, so we cannot be update this value। So again this value is minimum, now we have to be find out the minimum value that is 22 and that is the vertex 5, so we have to be cover all the vertex until it will becomes, now we have to be firstly we have to visit 6, now we have to be visit the 5 vertex, okay, so we have to be move until this unvisited vertex is unempty। Clear? Let us solve one problem again। So we have a given graph that is ABCD, so we have to be make a table, this is visited vertex and this side is the unvisited vertex, that is A B C D E and F। So firstly we have choose the source vertex, so consider we have choose the source vertex is A, that is u, so we have to be put this value is 0 and remaining all vertex have the value is infinity, तो हमने इसकी वैल्यू को पुट क्या किया 0, बाकी सबकी वैल्यूज को क्या किया दैट इज infinity। क्लियर? तो वी हैव टू बी एक्सट्रैक्ट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम दिस टेबल, तो मिनिमम वैल्यू इज द this, तो मीन्स वी हैव टू बी ट्रेवर्स द वर्टेक्स A, this is the source vertex। now we have to be find out that is v, now distance of u is 0 plus cost of u comma v, cost अब में सपोज b को v कंसिडर करके चल रहे हैं तो cost कितना हो गया प्लस 4 is less than distance of v, distance of v कितना है infinity, तो we have to be change this value,
तो वह हम यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया 4, और जैसे ये 4 हुआ इसको हमने कहाँ अपडेट किया, टेबल के अंदर। दूसरा v कौन सा हो गया, c, तो डिस्टेंस ऑफ u 0 प्लस कॉस्ट ऑफ a एंड c दैट इज 5, अगेन इट इज लेस देन इंफिनिटी, तो वी हैव टू बी अपडेट दिस वैल्यू। तो हमने कौन सी वैल्यू को अपडेट किया, c वर्टेक्स को, दैट इज 5। बाकी का कहीं भी कोई लिंक नहीं है, तो वी हैव टू बी पुट द इंफिनिटी। तो अगेन वी हैव टू बी एक्सट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू, एंड मिनिमम वैल्यू इज 4, तो विच नोड वी हैव टू बी एक्सट्रैक्ट, दैट इज b। okay, so now b is visited vertex. So again we have to be find out, this is u, distance is, now it is u and it is v। अब suppose मुझे मूव करना है c, अब distance of u that is 4 plus cost of u and v that is 11, that is 15 is less than 5, no, condition is not true, so we cannot be update the value of vertex c। Now link b to d, तो distance of u that is 4 plus cost of u and d that is 9, that is 13, 13 is less than d की distance कितना, infinity, तो we have to be update value, और ये मेरा d का वैल्यू कितना हो गया, that is 13। दूसरा लिंक कहाँ है, d to e, d2 is connected, तो again b की वैल्यू कितना हो गया, distance of b is 4, distance of b and v, या मैं बात करूं cost that is 7, that is value is 11 and 11 is less than infinity, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को चेंज कर दूंगा, और e की वैल्यू हमारा कितना आ गया, that is 11। okay, now b to e there is no link, तो its value is infinity। तो again we have to be find out the minimum distance, and minimum distance कितना है मेरा 5, तो हम कौन से वर्टेक्स को मूव कर रहे हैं, that is a to b c, तो हमने कौन से वर्टेक्स को बाहर किया, c, तो अब मेरा c कौन सा हो गया, विजिटेड। एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है, जैसे अब मैं c पे पहुंचा, ये मेरा कौन सा है, अनडायरेक्टेड ग्राफ, तो अगर मैं बात करूं c to a या c to b, तो मुझे उन वर्टेक्स की बात नहीं करनी है जिन वर्टेक्स को हम कहां पे लेके आ गए हैं, इन द विजिटेड वर्टेक्स की, मींस जिन वर्टेक्स को हम मूव कर चुके हैं, अब मुझे दोबारा उनको यहाँ पे कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू बी मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ c is the source vertex, तो distance of u is c के distance कितना है मेरा 5 plus cost of u and v that is 3, value is 8, तो 8 is less than 11, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, e की distance को अब चेंज कर देना है, e की मेरा distance कितना हो गया, that is 11। now distance c to d, कोई भी उसमें यहाँ पे लिंक नहीं है, तो मेरी इसकी वैल्यूज कितना हो गया, दैट इज 13, मींस हमने यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं किया, एंड c to e कोई भी लिंक नहीं है, वैल्यू इज इंफिनिटी। तो अगेन वी हैव टू बी फाइंड आउट द मिनिमम, और मिनिमम कौन सी है, 8, और कौन सा वर्टेक्स, e, तो हमने अनविजिटेड से e वर्टेक्स को कहां पे मूव किया, इन द विजिटेड वर्टेक्स। तो अब मेरा विजिट कौन सा हो गया, e। कब तक करते जाना है, जब तक कि सारे के सारे वर्टेक्स विजिट ना आ जाए, कि सारे के सारे वर्टेक्स यहां से इधर ना आ जाए। जैसे वो ई पे गया, अगेन डिस्टेंस ऑफ यू कितना है, 11 प्लस, अब वो बात कर रहा है डी के लिए, अगर कॉस्ट कितना हो गया 13, तो दैट इज 24, बट डी की डिस्टेंस कितना है मेरा 13, तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को अपडेट नहीं करेंगे, मेरे डी की डिस्टेंस कितना रहेगा 13। नाउ E to F, तो डिस्टेंस ऑफ U दैट इज E की डिस्टेंस कितना है मेरा 11 प्लस कॉस्ट ऑफ U एंड V, तो दैट इज 6, तो वैल्यू इज 17, और 17 क्या है मेरा, इन्फिनिटिव से लेस देन है, तो मैं इसकी वैल्यूज को क्या कर दूंगा, 17 अपडेट कर दूंगा। तो अगेन वी हैव टू बी एक्सट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू, एंड मिनिमम वैल्यू इज 13, तो वी हैव टू बी मूव D vertex from unvisited to visited। तो मेरा विजिटेड वर्टेक्स कौन सा हो गया, दैट इज डी। तो जैसे मैं यहाँ पे डी पे मूव किया, अब डी से फिर क्या गया, डिस्टेंस ऑफ यू कितना हो गया, दैट इज 13 प्लस कॉस्ट ऑफ यू एंड वी दैट इज द 2, तो दैट इज 15 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ यू
कितना 17, यस कंडीशन इज ट्रू। तो वी हैव टू बी व्हाट वी डू, वी हैव टू बी अपडेट द वैल्यू ऑफ दिस, और ये वैल्यू अब कितना हो गया मेरा, दैट इज 15। तो मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को कितना पुट कर दिया 15। तो नाउ वी हैव टू बी फाइंड आउट द मिनिमम, एक ही वैल्यूज है कितना 15। तो वी हैव टू बी एक्सट्रैक्ट द f फ्रॉम द अनविजिटेड वर्टेक्स टू द विजिटेड वर्टेक्स। तो मुझे कब तक कवर करते जाना था दिस एल्गोरिथम को, कि मुझे जब तक कवर करते जाना था कि जब तक कि मुझे सारे के सारे वर्टेक्स क्या ना हो जाए, विजिट ना हो जाए। तो हमने क्या किया, सिर्फ एक सिंगल सोर्स वर्टेक्स से, कौन से वर्टेक्स से, ए से मैंने कवर किया, ए टू बी भी कवर किया, बी टू सी भी किया, ए टू डी भी किया, डी टू ई भी किया एंड ए टू एफ भी किया। और इसको कवर करते हुए डिस्टेंस कितनी की, सपोज अगर मुझे कवर करना है ए टू एफ, तो ए से एफ पे जब भी मैं मूव करूंगा तो वो मेरी डिस्टेंस मिनिमम कितना आना चाहिए, दैट इज 15 पूरे के पूरे ग्राफ के अंदर, कि ए टू एफ की डिस्टेंस मेरा कितना आएगा 15। तो इन अदर वर्ड्स मैं यहां पे बात कर सकता हूं ए से ए की मेरा डिस्टेंस कितना है, दैट इज 0। ए से ए की डिस्टेंस कितना है 0। अगर मैं मूव करता हूं ए टू बी की मेरा डिस्टेंस कितना है, दैट इज 4। इसी तरह ए टू सी की मेरा डिस्टेंस कितना है, दैट इज 5। ए टू डी, तो अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम ए टू डी कहां पे आया था यहाँ पे, तो दैट इज डिस्टेंस इज 13। ए टू ई कहां पे एक्सट्रैक्ट हुआ यहाँ पे, और ई की मेरी डिस्टेंस कितना है 8। एंड ए टू एफ अगर हम मूव करते हैं, एफ मेरा कहां पे आया यहाँ पे, और डिस्टेंस कितना है 15। मींस हमने एक ही सिंगल सोर्स वर्टेक्स से, इसीलिए यहाँ पे इसको बोला जाता है दैट इज ए सिंगल सोर्स वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स दैट इज ए, एंड वी हैव टू बी कवर द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए इज 0, ए टू बी इज 4, ए टू सी इज 5, ए टू डी इज 13, A to E is 8 and A to F is the 15. So this is the minimum distance. So that it is also known as a single source vertex algorithm. अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा पाथ हमने चूज किया, मींस ए टू एफ जाने के लिए 15 है, तो विच वर्टेक्स वी हैव टू बी कवर, वी हैव टू बी कवर ए टू बी टू सी टू ई टू एफ, और विच वर्टेक्स वी हैव टू बी कवर। तो वी कैन बी आल्सो फाइंड आउट दिस वैल्यू फ्रॉम दिस टेबल। सपोज वी हैव टू बी फाइंड आउट द डिस्टेंस, कहां से करना है, ए टू एफ। तो मैं यहाँ पे बात करूं कि मुझे बात करना है ए टू एफ का डिस्टेंस करना है, तो मैं स्टार्ट कहां से करता हूं, एफ कहां पे हुआ, दिस वैल्यू। अब इसको ध्यान दीजिए, क्लियर। तो ये जब भी यहाँ पे मूव करेगा, तो एफ पे अगर इसको मूव करना है, तो मूव करने के लिए वो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये वैल्यूज को चेक करेगा, इसके ऊपर यहाँ पे वैल्यू चेक करेगा। अगर ये वैल्यूज यहाँ पे क्या है, चेंज है, यहाँ पे कोई भी वैल्यूज नहीं है, तो यहाँ पे हमने कौन से वर्टेक्स को मूव किया, 13 वैल्यूज को किया, और 13 किसकी वर्टेक्स की मेरी वैल्यू था, डी की। मींस अगर एफ से मुझे जाना है तो मैं कहां से गया, डी। अगेन वी हैव टू बी फाइंड आउट, ऊपर गया डी, यहाँ पे वैल्यूज 13, इसके ऊपर गया, वैल्यू क्या है, सेम। तो ये यहाँ पे इसको कंसिडर ये चीजें नहीं करेगा, ये फिर कहां जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, और फिर इस वैल्यूज को क्या करेगा कि सिमिलर इस वैल्यूज को वहां पे वो क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, और मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगी, इसकी यहाँ पे डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर कि अगर मुझे ए टू एफ करना था, तो ए टू एफ की मेरी डिस्टेंस कितना है 15। तो मींस अगर मुझे ए टू एफ यहाँ पे जाना है, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा कौन सा पाथ कवर होगा, ए टू बी दैट इज 4 प्लस बी टू डी दैट इज 9 एंड देन डी टू एफ दैट इज द 2। तो मींस द वैल्यू इज ए टू बी इज 4, बी टू डी is 9 and D2F is the, so we have to be sum all these values, and 9, 13 that is the 15. So that is the minimum distance which have to be find out. And we can be also find out this from the given table.
ओके अब एग्जांपल्स क्लियर हुआ है तो अभी इसी एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। तो नाउ इट इज बी क्लियर। तो फर्स्टली हमने क्या किया था, वी हैव टू बी कंसीडर a table. In this table we have to be write up all the vertex, and from these vertex we have to be consider one is the source vertex and remaining is the unvegetated vertex, or we can say that the remaining is the vertex in the come v. तो source vertex जो मेरा था, we have to be put the value 0, we have to be source vertex की क्या किया 0, बाकी सबको क्या किया infinity। तो यही चीजें यहाँ पे इसमें कह रहा है कि first one mark the source node with the current distance, और current distance कितना हुआ 0, and remaining all the vertex we have to be put the distance is the infinity। यही हमने यहाँ पे किया कि source vertex की वैल्यू 0, बाकी सभी vertex की वैल्यू कितना हुआ infinity। In the second, now set the known visited nodes from the smallest distance as the current node। कि जैसे हमने यहाँ पे किया कि अब जैसे मैंने यहाँ पे कंसिडर किया सोर्स वर्टेक्स 0 एंड बाकी सबको क्या किया इन्फिनिटी, तो इस टेबल के अंदर से हमने क्या किया वो वैल्यू फाइंड आउट किया जो कि क्या है मिनिमम, और मिनिमम कौन सा था 0। तो हमने जिस वर्टेक्स की वो वैल्यू है उसी को मूव कहां करते गए, दैट इज द विजिटेड वर्टेक्स। ये किया। नाउ कि जैसे एक वर्टेक्स को हमने अब विजिट किया तो फिर क्या किया, अब हमने उसके नाइबर्स को फाइंड आउट किया कि जैसे u इज द सोर्स वर्टेक्स, और सोर्स वर्टेक्स कौन सा हो गया 0। तो अब उसके नाइबर्स कौन कौन सा है, लिंक कहां पे है 0 to 2 का लिंक है और 0 to 4 का लिंक है। तो हमने अब यहाँ पे क्या किया, इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड आउट किया। अभी डिस्टेंस कितना है इन्फिनिटी, तो हमने क्या किया डिस्टेंस ऑफ u दैट इज 0 प्लस इसके बीच की डिस्टेंस कॉस्ट दैट इज 6। अब इसको चेक किया, जब दोनों को प्लस किया, अगर ये वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू से लेस देन है, वैल्यू कितना है इन्फिनिटी, तो हमने क्या किया उस वैल्यू को वहां पे चेंज किया। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है इन द थर्ड पॉइंट फॉर ईच नाइबर्स n ऑफ द करंट नोड एड द करंट डिस्टेंस। करंट डिस्टेंस कितना हमने किया 0 प्लस जो भी उसकी कॉस्ट निकाला ऑफ द एडिशन नोड विद द वेट ऑफ द एज कनेक्टेड, जो मेरा एज उससे वहां पे कनेक्टेड है। कि हमने क्या किया 0 प्लस जो एज है कनेक्टेड है और वो वैल्यू कितना है 6, उसको हमने प्लस किया और उसी वैल्यू को चेक किया। इफ इट इज स्मॉलर देन द करंट डिस्टेंस, अगर वो मेरी क्या है स्मॉलर है करंट डिस्टेंस से, कि अभी वैल्यू कितना था उसकी इन्फिनिटी, वो यहाँ पे कितना निकल के आया 0 प्लस 6, वो वैल्यू क्या है लेस देन, तो हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे। अगर वो लेस देन है तो देन सेट द न्यू करंट डिस्टेंस ऑफ द एन, मींस जो मिनिमम वैल्यूज है हमने उसको क्या किया उसके डिस्टेंस में पुट किया। नेक्स्ट मार्क द करंट नोड 1 इज द विजिटेड। तो हमने और यहाँ पे क्या किया कि जिस वर्टेक्स से हमने मूव करके इसमें से मिनिमम को निकाला, इसको हम क्या कर देते हैं विजिटेड में कंसिडर कर लेते हैं। अब मूव करते हैं फ्रॉम नेक्स्ट वर्टेक्स। अब जो भी इसमें से मिनिमम डिस्टेंस के साथ होगा, सपोज कौन सा आया था 2, अब हम 2 को लेंगे सोर्स वर्टेक्स, फिर उसके वो लिंकअप फाइंड आउट करेगा उसके एडजेसेंट कौन कौन से हैं। क्लियर। और कब तक करते जाना है, जब तक कि हमारी ये टेबल क्या ना हो जाए, मींस कि मेरे सारे वर्टेक्स अनविजिटेड से कहां मूव ना कर जाए विजिटेड की साइड। तो मुझे तब तक एल्गोरिथम्स को अप्लाई करते जाना है। तो यही होगा कि नेक्स्ट गो टू द स्टेप 2 इफ देयर आर एनी नंबर ऑफ नोड्स आर द अनविजिटेड। तो मुझे इसी वर्टेक्स को क्या करते जाना है विजिटेड करते जाना है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू बी सीइंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इसी एल्गोरिथम को फिर हम एक सी फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे कि हाउ this algorithm is converted into the C function and write down the program. Okay, thank you.